Okay, so kids, let's start with the today's session. So today we'll take all the doubt solving of the doubts which I've received of limits. Let's go ahead. Okay, so you can just see the question here. 1 minus 2, 3 minus 4, 5 minus 6, 7 minus 8. It goes on and all till 2n terms. Okay. So kids, don't you think as far as the numerator is concerned, I can write this as limit x approaching infinity और ऊपर आएगा -1, 3 minus 4 will be -1, 5 minus 6 will be -1, और it will go on and on till n times. Do you agree? Yes, sir. n times क्यों लिखा मैंने? n times क्यों लिखा मैंने? यहाँ तो 2n है, n times क्यों लिखा? n pairs, sir. ये pair है ना? Do you see the pair? Do you Yes, see the sir. pair? So that's why I wrote n times. Okay. Next. Okay, denominator I have is under root of n square plus 1 plus under root of 4n square minus 1. Is it okay? Chalo. So now kids, don't you think as far as the numerator is okay? Now this is a correction. This should be n. Huh? This should be n. Okay, तो यहाँ पर mistake है. यहाँ पर n होना चाहिए. n approaching infinity. तो यहां पर आ जाएगा -n. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This is of course n square plus 1 and this is under root of 4n square minus 1. I think आगे का स्टेप तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं. बोलो मैं क्या करने वाला हूं? Rationalize क्यों करना है? अरे divide the numerator and denominator by n. Yes. So if I divide by n, I'll get 1 here. If I divide by n, so this n will go inside the root. So it becomes under root 1 n square plus 1 upon n square. Is it okay? Yes, sir. This will be 4n square minus 1 upon n square. Now this n square can be splitted. So this is -1. नीचे आएगा under root of I get 1 plus 1 upon n square. यहाँ पर आएगा under root of 4 minus 1 upon n square. Is it okay? Yes, sir. I can put the infinity. So what I get the answer is this is -1. -1 by 5. This will be 1. This is root of 4. ना ये तो 0 हो जाएगा. Do you agree? Yes, sir. A be 0. The root of 4 will become how much? 2. Is it okay? So my answer becomes how much? -1 by 3. A, getting me? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Look at the next problem. Okay kids, यहाँ देखना it is 1 minus x, 1 minus x square till 1 minus x raised to 2n. तो can I say numerator में total 2n terms है ना? ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो total 2n terms होंगे. Do you agree? Yes, sir. Okay. और यहां से यहां देखना ये n टर्म है. Do you agree? लेकिन ये होल स्क्वायर है. Is it okay? Yes. Is it okay? Yes. तो मैं एक काम करता हूं किड्स. लुक एट द स्टेप व्हाट आई एम गोना डू. हमारे पास एक रिजल्ट है जो सब शायद सबको पता है. लिमिट x अप्रोचिंग a x रेज टू n माइनस a रेज टू n upon x minus a, it can be written as n times a raised to n minus 1. Is it okay? Yes, sir. So तो मैं क्या करने वाला हूं kids? So I'll do one interesting thing. You pay attention. This is 1 minus x. This is 1 minus x square. Of course, I'll have 1 minus x cube. This will go on and on and on. यहाँ पर आएगा 1 minus x raised to 2n. ठीक है? ओके. अब ना मैं एक काम करने वाला. ओके. सिमिलरली, ऑफ कोर्स इनसाइड द ब्रैकेट आल्सो यहाँ पर आएगा 1 minus x, 1 minus x square, 1 minus x cube. ये ऐसा चलता रहेगा. यहाँ पर आएगा 1 minus x raised to n.
अपना आप ध्यान से देखना कितना, ठीक है? I'll divide the numerator and denominator by, I'll divide the numerator and denominator by, ध्यान से देखो, 1 minus x, 1 minus x, 1 minus x. So in the numerator, I have divided by 1 minus x how many times? 2n time. 2n times. So can I add this as n times only here? Yes, sir. Why? Because it is whole square, right? Yes, sir. Pakka na? Sir. Okay, wow. So now kids, think of the formula which we know already. So can I use, think of this formula? Yes. तो पता है यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर आएगा 1 into this will become 2. Do you agree? है ना? उल्टा लिखेंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा ना? Yes, sir. Into 3 into 4 into 5 dot 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 into 2n. Do you agree? अरे Yes. do you agree? Yes, sir. Similarly नीचे आएगा 1 into 2 into 3 into 4. It goes on and on and on till n, the whole square. Do you agree? Yes, sir. Can I say the numerator will become 2n ka factorial? Do you agree? Yes, sir. नीचे will become n factorial ka square. Do you agree? Yes, sir. Now this is nothing but 2n factorial ऊपर, नीचे है n factorial. Is it okay? Yes. And finally the answer, this guy can be written as what? 2n cn. Do you agree? Yes, sir. So automatically your answer becomes 2n cn. Is it okay? Yes, sir. ये चैत्य तेरे को समझा क्या? Yes, sir. हाँ, चलो अच्छी बात है. Let's go to the next problem. Okay, you know what? The moment I saw this problem, मेरे दिमाग में immediately एक ही बंदा आया. पता है डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद है? F dash of x is limit h approaching 0 f of x plus h minus f of x upon h. कभी सुना है इसके बारे में? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ओके, तो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप शायद थोड़ा कोरिलेट शायद कर पाओगे, शायद आप थोड़ा सा कोरिलेट शायद आप कर पाओगे. कर पा रहे हो क्या? चलो बताता हूं. यू नो द न्यूमर, जो क्वेश्चन दिया है ना, लिमिट ऑफ y अप्रोचिंग 0, यहां पर है x प्लस वाई sec of x प्लस वाई माइनस x sec x, नीचे है y. आपको ऐसे नहीं लगता किड्स, ये जो फंक्शन है इस यहां पर पता है क्या हो रहा है? हु इज डूइंग द वर्क ऑफ h? Why? हाँ, this y is doing the work of h. This y is doing the work of h. This y is doing the work of h. Do you agree? अरे do you agree? Yes, sir. पक्का ना? X sec x का डेरिवेटिव. हाँ, अरे वही तो बोलना चाहता था. ये बंदा एक्चुअली है क्या? ये है f dash of x, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो आपका यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन क्या होगा आपके हिसाब से? फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन f of x should be what? x into sec x. Do you agree? Yes, sir. अब इसको तो डेरिवेटिव जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर सकता है. Do you agree? Yes, sir. u into derivative of v plus v into derivative of u. Is it okay? Yes, sir. So finally I can take sec x को common, so I get here x into tan x plus 1. Is it okay? Yes, sir. That's it. आपका आंसर है ऑप्शन ए. Yes, sir. Understood now? Yes, sir. Cool. Okay. ठीक है. Now kids, सबसे पहली बात, कुछ रिजल्ट्स में पहले बात कर लेता हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला की बात करूँ. यू नो व्हाट किड्स, जब ये सब सम्स देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे. वो है लिमिट x अप्रोचिंग सपोज 0
a raised to x minus 1 upon x. आंसर याद है इसका? log x to the base e. log a. Is it okay? दूसरा है लिमिट x अप्रोचिंग 0 log of 1 plus x by x. इसका आंसर e हो जाता है. इज इट ओके? Yes, sir. और तीसरा है ऑफ कोर्स लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x by x. ऑफ कोर्स इसका आंसर 1 है. इज इट ओके? Yes, sir. तो ये सारी चीजें हमको यूज करनी ही पड़ेगी, वो तो ऑब्वियस बात है. उसके साथ साथ और एक चीज मुझे काम आने वाली है इस प्रॉब्लम में, वो है 1 प्लस एक्स रेज टू एन. बाइनोमियल थ्योरम में ये बेसिक फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर. एंड ये चलता रहेगा. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. तो ये सारी चीजें हमें यहां पर अभी काम आने वाली है. देखते हैं कैसे. चलो तो पहले एक काम करते हैं. यहां पर ना मुझे क्यों ना ऐसे क्यों लग रहा है यहां पर कुछ एक करेक्शन है क्वेश्चन में. ठीक है, देख लेते हैं. ओके, तो शुरुआत करते हैं लिखना. क्वेश्चन आपके सामने है. लिमिट x अप्रोचिंग 1. ओके, यहां पर एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना x माइनस 1 को h पुट करने वाला हूं. ओके, आई जस्ट से हियर लेट x minus 1 equal to h. So x will become 1 plus h. ये मोटिवेशन मुझे कहां से मिला? ये मोटिवेशन x minus 1 sin दिख रहा है क्या? x minus 1. ये दिख Yes, रहा है क्या? sir. Yes, sir. तो मुझे यहां से मोटिवेशन मिला है. पहली बात तो आप ये समझ जाओ. सो ऑफ कोर्स तो यहां पर हम एक काम करेंगे. एज x will approach 1, h will approach 0. तो मैं यहां पर अभी ना इस बार लिखूंगा h approaching 0. एक मिनट यार. सो यहां पर आ जाएगा h will approach 0. In place of x minus 1 I'll write h. In place of x I will write 1 plus h log. In place of x I will write 1 plus h upon 2. ठीक है. जहां तक डिनोमिनेटर का सवाल So है, 4 raised to h minus 1 plus h is a whole bracket. क्या हुआ? 4 raised to h minus 1 plus h is a whole bracket. हाँ वो करेंगे ना आई विल जस्ट टेक इट इनसाइड बाद में करेंगे. ओके ओके. यहाँ पर किड्स आई थिंक आई हैव अ गट फीलिंग कि यहाँ पर ना कुछ तो गड़बड़ है. ये 7 प्लस एक्स है राइट. यहाँ पर दिस इज हाँ नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है. आई थिंक वी कैन पुट एक्स. पुट एक्स का वैल्यू 1 प्लस एच. इज इट ओके? Yes, sir. So sir, I'm saying 4 raised to x minus 1 minus x is a whole bracket. आपने अलग-अलग लिखा है. ठीक है. हाँ, yes sir, yes sir. या ठीक है. चलो इन प्लेस ऑफ एक्स आई विल राइट 1 प्लस एच. ठीक है, ये होल रेज टू हाफ है और बाजू में आपके पास साइन ऑफ एच होगा. इज इट ओके किड्स? Yes. सो नाउ दिस इज लिमिट एच अप्रोचिंग 0. अब ना मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं? 4 raised to h minus 1 minus h. इज इट ओके? Yes, sir. लॉग ऑफ यहाँ पर 2 प्लस एच आएगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एच बाई 2. इज इट ओके? Yes. नीचे यहां पर आ जाएगा 8 प्लस एच होल रेज टू 1 बाई 3. यहां पर आएगा 3 प्लस 1 4. तो यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 3h होल रेज टू हाफ और यहां पर पूरा का पूरा साइन ऑफ h हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. अब ना किसी काम करते हैं ना, इसके नीचे h होना चाहिए, इसके नीचे h बाई 2 होना चाहिए, इसके नीचे h होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. तो मैंने एक काम करता हूं, मैं ना डिवाइड बाय एच स्क्वायर कर देता हूं. इससे क्या होगा देखते हैं. ठीक है, यहां पर आएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0. दिस इज 4 raised to h minus 1. ओके, माइनस h. आई एम जस्ट राइटिंग इट एवरीथिंग प्रॉपरली जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए. ये है 1 प्लस h बाई 2. ठीक है, उसके बाद नीचे आई जस्ट राइट इट डाउन. ओके किड्स, यहां से ना मैं एक काम करूं, मैं 8 को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h बाई 8 होल रेज टू 1 बाई 3. इज इट ओके? Yes, sir. यहां से मैं 4 बाहर निकालूंगा तो रूट होके बिकम्स 2 इंटू 1 प्लस
3/4h whole raised to 1/2. Is it okay? Yes, sir. तो यहां पर साइन h है. अब मैं एक स्टेप लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना. I'll divide the numerator and denominator by h square. इससे क्या होगा, देखो एक h यहां पर आ जाएगा और एक h यहां पर आ जाएगा. इज इट ओके? ये एक h यहां पर गया, ठीक है, और दूसरा h यहां पर आ जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. मैं h स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो एक h यहां पर गया, एक h यहां पर गया, वो h है ना, स्प्लिट हो गया. इज इट ओके? Yes, sir. और सिमिलरली यहां पर भी एक h आ जाएगा और ऑटोमेटिकली यहां पर भी एक h आ जाएगा. इज इट ओके? क्योंकि मैंने h स्क्वायर से डिवाइड किया. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. अब हम एक काम करेंगे, हम सीधा फटाफट रिजल्ट लिख लेते हैं, तो ज्यादा मगजमारी नहीं होना चाहिए फिर. सो ओके, व्हाट दिस गाय विल बिकम, क्या हो जाएगा? Log 4. log 4. ये log 4 हो जाएगा. दिस गाय विल बिकम 1, राइट? Yes, 1 sir. कैन बी रिटन एज log of e. आई होप ये प्रॉब्लम नहीं है आपको. Yes, sir. Now I need h/2, so I'll say divide by 2 and divide by 2. Is it okay? Yes. Is it okay? So this guy that you see will become what? E. 1. 1, na? Sorry. I just done one small mistake. ये e नहीं है, 1 है ये. My mistake. Yeah. This is 1, huh? I by mistake wrote. Yeah. ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. तो ये आपका 1 हो जाएगा. ओके. और ये हाफ है ना, वो हाफ नीचे आ जाएगा. ओके. और ये भी आपका 1 हो गया. तो हमारे पास बचा है 2/h. ओके, ये 2 भी मैं कॉमन निकाल लेता हूं. ठीक है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा. चलेगा ऐसा? Yes, sir. 1 plus h/8 whole raised to 1/3 minus 1 plus 3/4h whole raised to half. Is it okay, kids? Yes, sir. Now the numerator now can be written as, ध्यान से देखना, it will become a log of 4/e. Is it okay? Yes. चलो ठीक है. नेक्स्ट वाला है 4/h है, तो I'll just write here 4/h. Now let's work on this guy. Okay, can I apply 1 plus x raised to n का formula? Yes, sir. So 1 plus nx. Okay, 1 plus nx. So it will be 1 plus n, है ना, n ना? Yes, sir. 1 plus nx. x आपका है h/8. 1 plus nx. Is it okay? है ना, 1 plus nx. Is it okay? Yes, sir. Okay. फिर बाद में 1 plus nx आ गया. उसके बाद आगे भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन आई थिंक मुझको लिखने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी. बोलो क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी मुझे? क्योंकि Cancel हो जाएगा. हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा इसके लिए. हाँ, इसलिए मैंने आगे का टर्म नहीं लिख रहा हूं. उसके बाद यहां पर भी आएगा 1 plus nx. तो क्या आएगा पता है? 1 plus nx. ओके, यहां पर आएगा 1 plus half x. 3/4h. So 3/4h. और ये चलता रहेगा. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके, बस एक बार इतना होने के बाद अब आप आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज लिमिट ऑफ, लिमिट कहां से आ गया? लॉग. चलो, या सो दिस इज log ऑफ 4/e. वो तो मैंने लिख दिया यहां पर. यहां 4 है अपॉन h है. ऑफ कोर्स यहां पर लिमिट क्या था? लिमिट h अप्रोचिंग क्या था? वो h अप्रोचिंग 0. लिमिट ऑफ h अप्रोचिंग 0 था यहां पर. अब की जब अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा. अब ध्यान से देखना. सबसे पहली बात, एक मिनट, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. डी एग्री? तो आई विल गेट h/24 ... हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके. सिमिलरली यहां पर भी आएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिल रहा है? यहां पर आपको मिल रहा है 3/8h ... इज इट ओके? Yes, sir. ओके. अब आप आई थिंक अभी क्लियर है. मैं h को डिवाइड कर सकता हूं, तो अगर वो h डिवाइड हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? log ऑफ, यहां पर आ जाएगा 4/e. यहां पर ये 4 h कैंसिल हो गया. आपको क्या मिलेगा? 1/24 प्लस
terms of h. Do you agree? पहले वाले Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर भी h डिवाइड, यहाँ पर आएगा 3/8 प्लस terms of h. Do you agree? Yes, sir. Okay, now I can plug in h का वैल्यू है 0, तो I get log of, यहाँ पर आपको मिलेगा 4/e, ये 4 है, this is 1/24 minus 3/8. Is it okay? So finally I can just simplify this. I get log of, क्या आ जाएगा, 4/e, and here take an LCM. What I get here, kids? 1 minus, क्या आ रहा है, 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा ना, 8 6 3 9 upon 24. Hey, is it okay? Yes, sir. So of course this goes with 6, so that 6 will go up to 6 upon, नीचे आ गया minus 8 log of 4/e, and finally the answer become minus 3/4 log of 4 upon e. Hey, is it okay? तो आंसर क्या है, minus 3/4 log of 4/e. log of 4/e है क्या ऑप्शन, log of 4/e? Option B, sir. ऑप्शन बी. तो किस वापस देख लो जिनको अगर समझा नहीं है, देखो ये रिजल्ट्स पहले आपको आने चाहिए. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने x - 1 को h पुट किया, वो मोटिवेशन मुझको यहां से मिला था, यहां से मिला और यहां से मिला. उसके पुट करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा और फिर मैं सोचा कि चलो रिजल्ट यूज करना है. अगर रिजल्ट यूज करना है तो h से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी h होना चाहिए, यहाँ भी h होना चाहिए, और यहाँ भी तो एक h ही, इसलिए मैंने h² से डिवाइड कर दिया. फिर डिवाइड करने के बाद रिजल्ट यूज किया और फिर मैंने ऑटोमेटिकली इसको बाहर निकाल दिया, 8 को बाहर निकाल दिया, जिससे 1 + x हो गया. बोले सर हमें कैसा पता चलेगा, ऐसे करना है. देखो 1 + x⁻n का फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, और फिर जब आप उसको हायर एक्सपैंड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आगे के टर्म्स तो h वाले टर्म्स ही होने वाले, हायर पावर्स ऑफ h ही होंगे, और बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं. इज इट ओके? Yes, sir. गुड. आगे बढ़ते हैं. ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है. देखो ये इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहाँ पर सब जगह पे 1/x है, 1/x है, 1/x है. तो ठीक है, तो मैं पता है कभी भी अगर ये आता है तो मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रिजल्ट चल रहा होता है, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 1 + x⁻1/x. ये रिजल्ट याद है क्या? क्या आंसर है? E. पक्का ना? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. इनफैक्ट आपको फिर ये भी याद होगा, ये रिजल्ट है लिमिट ऑफ X approaching. अप्रोचिंग 0, अगर सपोज 1 + f(x) है raised to g(x) है, और अगर ये जो प्रॉब्लम है, इफ दिस इज ऑफ द टाइप 1 raised to infinity, मतलब अगर ये 0 हो जाता है, सपोज अगर मैंने x 0 पुट किया, तो अगर ये 0 हो गया और ये इंफिनिटी बन गया, तब वो टाइम पे क्या करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, हाँ, x approaching a bracket fx तो minus एक्चुअली 1 अगर आपको प्रोसीजर याद होगा, प्रोसीजर कुछ ऐसा था, अगर आपको याद होगा, ओके, अगर आपको याद होगा, हम लोग इसको डायरेक्टली पता है क्या लिखते हैं. चल मैं डायरेक्टली लिख के बताता हूं मैं आपको, इसका आपको आंसर याद होना चाहिए. ओके, इसका आंसर क्या पता है, स्टेटिव f(x) e⁻², क्या है डायरेक्टली, e⁻² लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x) into g(x). याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. इसको ऑफ कोर्स आप और एक फॉर्म में भी लिख सकते हो. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत बार तो प्रॉब्लम ऐसे होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहां पर आएगा f(x)⁻g(x), और सपोज आपका f(x) 1 की तरफ जा रहा है और g(x) इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं इसको ऐसा लिखूंगा, add 1, so I will subtract 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो वो टाइम पे हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे. याद है ना, e⁻² लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x) -1 into G of X. g(x). Is it okay? Yes, sir. ओके, अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग इट. तो अगर मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट, 1 हो जाएगा. डू यू एग्री?
Yes, sir. तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, n टाइम्स 1, तो n टाइम्स 1 तो n होता है, एंड n अपन n 1 हो जाएगा. डू यू एग्री? Hmm. और ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा. डू यू एग्री? 1 to the power in. तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ना एक मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं लेट मी कॉल 1 by x एज y. इससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम में ना मेरा डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, जो मेरा लिमिट है ना, वो y अप्रोचिंग 0 हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, तो y विल अप्रोच 0 एंड ऑटोमेटिकली मुझे मिलेगा a रेज टू, यहां पर a1 रेज टू y प्लस a2 रेज टू y प्लस a3 रेज टू y, और ये चलता रहता है कंटिन्यूसली. ये हो गया an रेज टू y, और ऑफ कोर्स नीचे आपके पास n है, और ये ऊपर आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा n by y. डू यू एग्री? Yes, sir. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स जब इस फॉर्म का प्रॉब्लम होता है, अगर ऑफ कोर्स ये आपको फॉर्म दिख ही रहा होगा, तो आपको ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करना चाहिए, तो मैं वो भी करके बता देता हूं मैं. ओके, सो दिस बिकम्स लिमिट ऑफ y अप्रोचिंग इंफिनिटी, सो आई विल ऐड 1, so I will have to subtract 1. I will have to subtract 1. Do you agree? Yes, sir. I will subtract 1. I hope ये समझा आपको ये वाला स्टेप. अरे समझा क्या? Ah, yes. ठीक है. Yes, sir. अब क्या होगा, 1 प्लस यहाँ n चला जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आएगा ये सेम टर्म, ये a वाले टर्म्स आ जाएंगे, माइनस n आ जाएगा. चलेगा? माइनस n अपॉन n आ जाएगा. द होल रेज टू n बाय y. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, आपके a वाले टर्म्स में जो नहीं लिख रहा हूं. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ दिस n दैट यू सी जो न्यूमरेटर में है, दिस n कैन बी रिटन एज 1 plus 1 plus 1 n times. Do you agree? Yes, sir. So each one will go with term. Do you agree? Each one will go with a1 raised to y, a2 raised to y. Do you agree? हाँ बोलो ना. Ah, sir. हाँ, वेरी गुड. तो होगा क्या, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं. वो है आपको मिलेगा लिमिट y अप्रोचिंग 0, यहां पर है 1 प्लस, आपको मिलेगा a1, सॉरी a1 1 के ऊपर लिखा मैंने, एक मिनट, यहाँ a1 रेज टू y. ठीक है, सो a1 रेज टू y माइनस 1 प्लस a2 रेज टू y माइनस 1. दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड an रेज टू y माइनस 1. ठीक है, नीचे आपके पास है n और ऊपर है n by y. Is it okay? Look at the previous slide. मैंने n को 1 1 1 लिखा और उस सबके साथ एक एक बंदा गया है. Is it okay? Yes, sir. अब बताओ रे बताओ, मैं क्या करने वाला हूं. बताओ बताओ. अरे रिजल्ट ना. Which result? Limit of x approaching 0. 1 plus f of x raised to g of x. पता है ना इसका आंसर क्या होता है? e raised to F of x. limit of x approaching 0, f of F x of x into g into G of of x. x. Is it okay? Yes, sir. So I will get here limit, sorry, क्या limit लिख रहा है यार? I will get here e raised to limit of y approaching 0, और ऊपर आ जाएगा ये दोनों बंदे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. डू यू एग्री? Ah, yes, sir. n कैंसिल हो, y स्प्लिट होगा सबके साथ, तो यहां पर आएगा a1 y माइनस 1 अपॉन y प्लस a2 y, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, a1 y a2 y. It will be a2 y minus 1 upon y plus a3 y minus 1 upon y, और ये चलता रहेगा. लास्ट में आएगा a1 y minus 1 upon y. Is it okay? Yes, sir. This is log of a1. Do you agree? This is log of a2.
log of A3. A3. This goes on and on and on. आखिर में आएगा log of AN. AN. Of course, this can be written as log of log A plus log B plus log B will be log of ABC. हाँ के नहीं? Yes, sir. A1, A2 till AN. And I think finally answer क्या है बताओ? Base E है ना? So what is the answer? A1, A2 till AN. Yeah, A1, A2 till AN is your final answer. A1 दिव्य शाह ठीक है ना? दिव्य शाह गायब हो गया. ठीक है, तो ये क्या किया था हमने? पहले तो मैंने जब मैंने इन्फिनिटी देखा और जब मैंने 1/x को देखा yes sir तो मैंने 1/x को y बोल दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, दिमाग में मेरा चल ही रहा था ये 1:infinity फॉर्म है, तो मैंने add 1 subtract 1 कर दिया. और फिर मैंने जब LCM लिया तो n को मैंने 1 times लिखा और फिर बाद में and then the same old thing. Is it clear? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. 88 प्रॉब्लम नंबर 88 अच्छा प्रॉब्लम है. चलो पढ़ते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग 0 है और ये कुछ तो गिवन है और ये वैल्यू दे के रखा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है. द आंसर इज 1. तो उन्होंने a प्लस बी का वैल्यू हमको पूछा है, तो मैं एक क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहां पर आएगा x क्यूब. This is under root of a plus x. This is bx minus sin of x. Okay, और इसका वैल्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है. ठीक है, अब किस सबसे पहली बात ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं चेक कर लो. इज इट 0/0 फॉर्म? अरे कहां गए? Yes, sir, it's 0/0 only. ओके, और एक बात है, ये बंदा अच्छा इंसान है. व्हाई इज द नाइस गाय? So because it has Root a के अंदर value. it will be positive. और वो तो वो x0 पुट किया तो रूटे ही होने वाला है. डू यू एग्री? yes Yes, sir. तो इस रूटे को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं पहले और फिर अब इस लिमिट पे बात करते हैं. नेक्स्ट, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म होना ही चाहिए था क्योंकि ये इसका लिमिट वैल्यू फाइनाइट है, तो आई कैन आई यूज द लॉपिटल रूल. Yes, sir. So I will use the L'Hopital rule. So I'll get 1/root of a. I'll take a derivative in the numerator and take a derivative in the denominator. तो ऊपर आ जाएगा 3x Yes, sir. square. Is it okay? Yes, sir. यहाँ पर आएगा b, यहाँ पर आ जाएगा cos x. Cos Is it x. okay? Yes, sir. अब ना let's do some investigation here. वापस इसको 0/0 फॉर्म तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू फाइनाइट आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अब अगर मैंने x को 0 पुट किया, अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, It's sir. not 0/0 form. But b minus cos x should be अरे 0. बोलने देना मेरे को यार, आर्यन Yes, शाह sir, यार. yes, sir. ओके, अगर मैंने यहाँ पर x को 0 पुट कर दिया, अगर मैंने x को यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 1 हो रहा है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो इसको फिर नीचे वाले को 0 होना ही पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो b minus 1 should be 0. तो इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए? असल में इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? फिर 1. 1 होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. वापस बता रहा हूँ रे बाबा, ये एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो 0/0 फॉर्म होना ही पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अगर मैं 0 को पुट करूंगा तो ऊपर तो 0 है, नीचे क्या हो रहा है? नीचे cos of 0 1 दे रहा है, तो इसको 0 होना पड़ेगा. तो बेसिकली व्हाट आई एम कन्वेइंग हियर इज कि b माइनस व्हेन आई पुट 0 तो cos of 0 1 उसको 0 होना पड़ेगा, विच मींस आपका b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 1. डू यू एग्री? Yes, sir. तो वेल अभी भी तो 1 हमको मिल गया, फिर वी शुड बी हैप्पी. सो आई गेट हियर 1/root of a. This is limit of x approaching 0. This is 3x square. In the denominator I have 1 minus cos x. Do you agree? Yes, sir. Now let's simplify this. अब इसको तो solve कर ही सकते हैं अपन. We can write x square by 1 minus cos x as 2. हाँ लिखने वाला हूँ ना, 1 minus cos x ना 1 minus cos x upon x square. हाँ करता हूँ ना रे बाबा, करता हूँ. I'll divide by x square, so I'll get 1 minus cos x upon x square. Do you agree? Yes, sir.
और इसका आंसर हमको ऑलरेडी पता है. डू वी रिमेंबर? हाँ. तो यहां पर आएगा 1/√a, ये हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा हाफ. इज इट ओके? Yes, sir. सो 6 आ जाएगा. 6/√a is equal to 1. So root of a will become 6. So our a becomes how much? 36. 36. So finally, what will be the value of a plus b? 37. A plus b has to become 36 plus 1. So it becomes 37. Is it okay? Yes, sir. अच्छा प्रॉब्लम था ये. कूल. आगे बढ़ते हैं. ओके ओके या सबसे पहले इस पे ध्यान दो और फिर आप इस पे ध्यान दो कि जहां तक एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी जब मुझे दिखता है ना किड्स, और ये जो एन नीचे अगर होता है ना, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना शुरू हो जाता है. कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है मेरे दिमाग में? लिमिट n approaching infinity, integral as a limit of sum. याद है क्या? summation r equal to 1 to n function of r by n Into 1 by n. into 1 by n. Now this can be written as 0 to 1 f of x dx. Do you remember? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं, ये सुना है कभी? हाँ, sir. तो मैं बताता हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. ध्यान से देखो और दिल से देखो. दिल की बहुत जरूरत है यहां पर. लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी. अब ना ध्यान से देखना कि दिस इज 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये चलता रहता है, ये n/4 है. n/4 मैं यहां भी लिखूंगा, मैं यहां भी लिखूंगा, मैं यहां भी लिखूंगा, मैं यहां भी लिखूंगा, और मैं इसको into 1/n लिख सकता हूं क्योंकि नीचे n/5 है. इज इट ओके? हाँ, yes, sir. है ना? n/4 को स्प्लिट करके n1 लिखा. माइनस लिमिट ऑफ n. नाउ जहां तक इसका सवाल, इसमें मुझे चिंता नहीं करना है क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है. व्हाट इज सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स? n into n plus minus- 1 by 2 the whole square. Do you remember? Yes, sir. Okay, good. अब इतना होने के बाद look at this guy. This is limit n approaching infinity. Hey audience, can I write this as summation r equal to 1 to n? This is nothing but what? R by n whole raised to 4. Do you agree? Yes, sir. Cool. जहां तक इसका सवाल है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर, ये n प्लस 1 होल, यहां पर आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2/2 दैट इज 4, यहां पर आएगा n/5. डू यू एग्री? Yes, sir. ये आपको ऐसे लगता है ये तो जीरो हो जाएगा यार. क्या, क्यों जीरो हो जाएगा? The infinity in denominator is greater than that in numerator. हाँ, डिग्री ऑफ n का जो डिग्री ऑफ न्यू है, n का डिग्री ऑफ ज्यादा है न्यूमरेटर्स. डू यू एग्री? Yes, sir. ठीक है. जहां तक इसका इट इज इंटीग्रल लिमिट समेशन फंक्शन ऑफ r by n 1 by n. तो बोलो उसको कैसे लिखूं मैं? Integration from 0 to 1. 0 to 1. So when you said of the limit n approaching infinity n square plus 2, and I couldn't hear only after that. क्या बोल रहे हैं? So Could not hear. Which part? You said limit n approaching infinity n square. उसके बाद सुनाई नहीं दिया. नहीं कुछ, मैं खाली ओपन किया, मैंने बोला कि इसका आंसर जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाए तू बता चल आर्यन. इसका आंसर जीरो क्यों होगा? टेल मी, क्यों जीरो होगा? The degree of denominator is. हाँ, n का जो डिग्री है जो ज्यादा है डिनोमिनेटर में, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो जीरो ही होगा. डू यू एग्री? Yes. हाँ, ये वाला जो बंदा है इसका आंसर क्या होगा बता आर्यन. चल फिर अभी क्या हुआ? Just the one factor. हाँ, अरे इतना क्या सोच रहा है? आर्यन शाह किधर गया? Sir, my mic, I was switching it on. क्या बहाने कर रहा है? क्या आंसर है?
The integration of 0 to 1 f of x dx. So x raised to 4 ना, this x is a raised to function 4. Yes, sir. X raised to 4 dx. हाँ. x raised to 4. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. जहां इसका सवाल है, अगर किसी को फिर भी कन्विंस नहीं हो रहे हो आप लोग, तो आप खुद ही देख लो, ये 1/4 है, ये हो जाएगा n raised to 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, और नीचे आपका n raised to 5 है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो जो स्प्लिट करूंगा तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली ये आंसर 0 ही होने वाला है. डू यू एग्री? क्योंकि n का पावर ज्यादा है नीचे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सो ऑटोमेटिकली ये वाला जो टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया. तो आखिर में आपको जो आंसर मिला है वो सिर्फ है इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to 4 dx. इज इट ओके? Yes, अब sir. इससे x raised to 5/5 0 to 1, so finally the answer becomes 1/5. Is it okay? Yes, sir. Cool. The answer is 1/5. Good. आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी वीर मेहता है क्या क्लास में? वीर मेहता, वीर है क्या? वीर, Yes, sir. Yes, sir. क्या है वीर? तेरे को काम दिया था, तूने काम नहीं किया ना? मेरे को काम करने को पड़ा ना? सर मैं भूल गया. तू भूल गया तो मैं भी भूल जाता ना सम्स तेरे. ये हैंड रिटन जो है ना, वो मैंने लिखे हैं क्योंकि वीर ने अपना काम नहीं किया. वीर को मैंने बोला था पीडीएफ भेजने को और वो भूल गया. उसकी चिंता ही नहीं है, मेरे को चिंता है खाली. कैन आई गो एड? अरे कैन आई गो एड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है. So this is from where? अरे मुझे नहीं पता उसने कहां से क्वेश्चन दिया है, उसको ही पता है कहां से दिया. अरे That 18 years MCQ का बुक है ना, उसमें से है. उसमें से है क्या? नहीं सर, बिटसैट के बुक में सर. बिटसैट के बुक से. ओके ठीक है. कैन आई स्टार्ट? अरे कैन आई स्टार्ट? हाँ, Yes, sir. sir. ओके ठीक है. ये गिवन है और उन्होंने ए और बी का वैल्यू पूछा है. तो यहां पर आएगा लिमिट ऑफ एन अप्रोचिंग इंफिनिटी. मैंने यहां पर एलसीएम लेने वाला हूं. सो मुझे पता है क्या मिलेगा. मुझे मिलेगा ए एन प्लस ए एन स्क्वेयर -1 माइनस एन स्क्वेयर. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. अब मैं एक काम करने वाला हूं किड्स. मैं यहां से ना एन स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा a -1 n स्क्वायर, है ना? a -1 n स्क्वायर परफेक्ट है, प्लस a n -1, और नीचे आपके पास है n + 1. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. गुड. अब ना थोड़ा सा वार्तालाप कर दे. लेट्स हैव सम डिस्कशन. पहली बात किड्स, अगर ये बंदा आपको एक वैल्यू दे रहा है, देखो b इज अ फाइनाइट नंबर, इज इट ओके? तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है किड्स, तो आपको ऐसे नहीं लगता. अभी देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, फाइनाइट वैल्यू देने के लिए तो फिर ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. एन स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. क्योंकि अगर एन स्क्वायर का टर्म अगर होगा तो आंसर तो इंफिनिटी हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ये वीर मेहता, वीर मेहता, Yes, sir. Yes. समझ रहे क्या बोल रहा हूं तेरे को? हाँ सर. देख, अगर ये एन स्क्वायर का टर्म होगा ना, तो अगर तू डिवाइड बाय एन भी करेगा ना, तो प्रॉब्लम क्या, एन तो रहने ही वाला है. डू यू एग्री? Yes, sir. नीचे वाला अगर एन है तो हाईएस्ट पावर ऊपर एन ही हो सकता है. डू यू एग्री? फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये तेरा टर्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और ये नहीं होने के लिए तेरा एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट फिर क्या होना चाहिए? 0. कॉन्फिडेंटली बोलो यार, पक्का ना? 0, 0. या ये एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, जिसका मतलब है तेरा ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1. 1. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे A1 मिल गया, और ठीक है. अब आगे लिखता हूं मैं फिर. सो आई गेट हियर व्हाट? आई गेट लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी. ये तो नहीं है, तो यहां पर बचा an -1 अपॉन n + 1 इक्वल टू b. इज इट ओके? Yes, sir. So finally I'll divide the numerator and denominator by n. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So I get a -1 by n
and 1 plus 1 by n. Is it okay? Yes, sir. Yes, So now I can plug in n as infinity. So this guy will become 0. Even this guy will become 0. So what do I get is a minus 0 upon 1 minus 0 equal to b. So I get a is equal to b, and already a is 1. So automatically my a is also 1 and b is also 1. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Cool. Can I go ahead? Yes, sir. Sir, can you come back one sum? Yeah. With some. Sir, इससे पीछे वाला. हाँ. Sir, in this ये n raised to 5 है first limit में, तो वो भी क्या हो गया? denominator में higher power we don't consider that way. ये तो 0 हो जाएगा ना सीधा तेरा. Sir, left not. हाँ, किसकी बात उसमें. कर रहे हैं? यहाँ पर हाँ. बात कर रहे तू? हाँ. हाँ. अरे ये तो तो स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम था. ये तो इंटीग्रल यहाँ पे लिमिट ऑफ वो- सम वाला प्रॉब्लम था. डायरेक्ट प्रॉब्लम था ये तो. Sir, so if we get a result like this, then we अरे use भाई this अरे one. नहीं, समेशन है ना. हाँ. तो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट नहीं करने वाला ना, तो मैं तो सीधा रिजल्ट यूज करूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. Okay. And this side वो n raised to ये. हाँ, तो ये तो और- अलग ही है ना. हाँ, इसका उससे कुछ लेना देना है ही नहीं. अच्छा, वहाँ पे ये a क्यूब का अरे sum of cubic numbers सम ऑफ एन है. टर्म्स वाला फॉर्मूला. हाँ, हाँ. So ठीक है that's ना? why we are using that result. Okay, यस okay, यस yes, यस. ठीक है ना. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं इसका पावर पॉइंट भी भेज दूंगा. ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े. अरे आगे बढ़ू क्या? yes, sir. तो बोलो ना Yes. यार तुम लोग. चलो ठीक है. So let's go ahead with the solution. सबसे पहले थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है. f of x is a polynomial of least degree such that something is given. You know what, kids? The moment I saw this e ना, so मेरे दिमाग में इमीडिएटली रिजल्ट चल रहा है, वो है लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 प्लस f ऑफ x होल रेज टू g ऑफ x. तो इसका आंसर मुझे डायरेक्टली मिलेगा अगर ये 1:infinity फॉर्म है, ऑब्वियसली जो होना ही चाहिए उसको. तो इमीडिएटली दिमाग में आता है e रेज टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x इनटू g ऑफ x. डू यू एग्री? Yes, sir. अब सवाल ये है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे यहां पर. तो अगर ये बंदा 1:infinity फॉर्म है, देखो ये तो इन्फिनिटी हो रहा है. डू यू सी? Yes, sir. ये तो 1 ही है, तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर? 0. ऑफ कोर्स इसको 0 को अप्रोच करना पड़ेगा. इट हैज टू अप्रोच 0. डू यू एग्री? Yes, sir. इसको अप्रोच 0 होना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अगर इसको अप्रोच 0 होना है तो इट मींस मैं बाजू में लिख के बैठता हूं तो मुझे याद रहेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको 0 की तरफ जाना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अब सवाल है, अब आगे क्या? आगे जहां So तक the whole bracket is 1:infinity ना? हाँ 1:infinity फॉर्म ही होना पड़ेगा ना. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. है ना. इसको 1:infinity फॉर्म ही होना पड़ेगा ना पूरे प्रॉब्लम को. Yes, sir. ओके अब सवाल है कि इसको तो 0 की तरफ जाएगा. जहां तक इस लिमिट का सवाल है, इस लिमिट का आंसर क्या होगा वो मैं लिख के देता हूं. मैं इस लिमिट का आंसर, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. ओके, इस लिमिट का आंसर होना चाहिए e रेज टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय x इक्वल टू e स्क्वायर. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. अब ना आप ध्यान से देखना यहां पर e रेज टू लिमिट x अप्रोचिंग 0, यह है f ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास आ गया x क्यूब. डू यू एग्री? Yes, sir. अब ना थोड़ा वार्तालाप करते. लेट्स हैव अ टॉक. अब उन्होंने बोला f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है ऑफ लीस्ट डिग्री.
अब सोच रही एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है। देखो जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का जो पावर जो हो सकता है ना, वो एक्स क्यूब के ऊपर नहीं जाना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. क्योंकि देखो अगर वो एक्स क्यूब के ऊपर जाएगा ना, अगर वो एक्स क्यूब के ऊपर जाएगा, सपोज आपने अगर इसको एक्स टू 4 बोल दिया, समझे क्या बोला, अगर वो एक्स टू 4 जाएगा तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. और ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, है ना। 0, देखो इसका वैल्यूज देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। मैं क्या बताना चाहते हैं, आप ध्यान से देखना। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या होना चाहिए आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। एक मिनट ना, ये जो एफ ऑफ एक्स है, यहां देखना, ये 0 हो रहा है। तो अगर ये 0 हो रहा है तो यहां से जो एफ ऑफ एक्स होगा ना, पहली बात, ये एफ ऑफ एक्स इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जिससे ये वाला टर्म डिसअपियर हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ना कुछ ए एक्स क्यूब प्लस कुछ तो ऐसा होना चाहिए। इट मींस एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं, ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ऑब्जर्व अगेन ना, किस अगर एफ ऑफ एक्स आपका ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. आप राधे यहां भी देख लो, अगर सपोज आप यहां की बात करते हो ना, ये 0, उसको 0 होना है किड्स। अगर इसको 0 होना है, अगर यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? कहां गए लोग? So why should be minus x square? कैंसिल क्यों करना पड़ेगा? जिससे ये टर्म डिसअपियर हो जाएगा ना। सब बट वो डिवाइड करेंगे तो भी समझा 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 समझा। आर्यन हाँ समझा सर, समझा। वो वैल्यू रहेगा, वैल्यू रहेगा ना। डू यू एग्री? समझा। यस सर, यस। देखो भाई लोग, जिनको नहीं समझ रहा, वापस बता रहा हूं। देखो यहां जो एफ एक्स दिख रहा है ना किड्स, यहां पर ये जो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, उसमें आपका एक्स स्क्वायर को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो आंसर 0 नहीं आने वाला। डू यू एग्री? Yes, sir. अरे हाँ बोलो यार। यस सर। Yes, दूसरी sir. बात, यहां पर एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा, उन्होंने लीस्ट ही बोला है, लीस्ट बोला है। तो जो लीस्ट होगा वो ए एक्स क्यूब होगा। ए एक्स क्यूब क्यों होगा? क्योंकि अगर ए एक्स क्यूब होगा ना, अगर ए एक्स क्यूब होगा, तब जाके यहां पर ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. x⁴, अगर ये x⁴ अगर होगा, आप खुद ही देखो, अगर ये x⁴ होगा तो क्या होगा प्रॉब्लम? देखो 0 सर। समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर? Yes, sir. तो और मुझे तो लीस्ट डिग्री चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. तो मैं x⁴ के पास क्यों जाऊं अगर मेरा काम x³ से हो रहा है तो? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? अरे सब लोग समझ रहे हैं क्या? हाँ सर. राजवीर तेरे को समझा क्या? राजवीर नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसे Sir. होना चाहिए। हाँ, Sir, can you open the meeting? Divya wants to come in. no, I can't come allow in between. Yeah, Sir, Okay. he was there in the meeting. He left because of the Wi-Fi connection. I understood. I'll just send the recording to him. Yeah, ठीक है। तो किड्स समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं मैं? देखो आपको दो चीजें समझा रहा हूं। पहले ये जीरो की तरफ जाना चाहिए, तो 0 की तरफ जा रहा है। दूसरा, आपका जो ये जो वैल्यू 0 हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो आपको जो एफ ऑफ एक्स है ना, आपका जो भी वैल्यू होगा, आप अगर -x² नहीं लिखोगे, अगर आप +x² लिखोगे तो ये 0 नहीं होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. और नेक्स्ट x³ तो क्यों जा रहा हूं मैं? x³ तो जाऊंगा तब जाके ये फाइनाइट वैल्यू देगा। डू यू एग्री? Yes, sir. तो x⁴ तक नहीं जाने वाला मैं। डू यू एग्री? Yes, sir. In short, finally, let me simplify this. So this becomes e raised to limit x approaching 0, f of x में लिखने वाला हूं ax³ minus x² plus x² upon x³ is equal to e². Is it okay? Yes, sir. Good. Okay, तो देख लो मैंने f of x का वैल्यू लिख दिया यहां पर. Is it okay? Yes, sir. Now once this is done, can I cancel x²? Yes, sir. So then what do I get? I get e raised to limit x approaching 0. This x³ and x³ will get cancelled. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Like I'll be left with a only. Do you agree?
Yes, sir. तो असल में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर e raised to a equal to e raised to 2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Finally, what is my a का value? 2. 2. A becomes 2. So now finally have I got f of x? Yes, sir. Yes, sir. So finally, my f of x is what? 2x cube minus x 2x square. cube minus x square. It is 2x cube minus x square. Is it okay? Yes, sir. ए वीर मेहता तेरे को समझा क्या? ए वीर मेहता Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे ये लिमिट f of x प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लिया तो तीनों ऑप्शन मैच करेगा. हाँ ए उसको बुलाओ, ए दिव्य पटेल को बुलाओ जल्दी फटाफट. दिव्य पटेल को, हाँ दिव्य शाह सर. हाँ दिव्य पटेल को बुलाओ. Sir, Divya Patel is in the meeting only. Divya Shah is not. तो दिव्य शाह को बुलाओ. Sir. आया क्या? Sir. हाँ क्या हो वंश? Sir, in this you have done this lavender color का circle मारा e limit e to the power limit x approaches 0 f of x plus x square by x cube. उधर इंस्टेड ऑफ f of x डायरेक्ट ऑप्शन से डाल के वी कैन डू एंड चेक, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है. एक मिनट रुक, पहले मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, फिर तो सुनूंगा तूने क्या बोला है. यस सर. अरे कहाँ गया यार, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है यार. हाँ सर, he is coming sir, he is logging in. आया? Sir, या sir, at the start of the meeting when you were asking for Hriday, that time he was there but he had accidentally left. He just told me to tell you that. ठीक है. ओके, आई विल जस्ट लॉग द मीटिंग. जाने दो उसको, मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकता. उसको बोलो घर पे. हाँ हेलो. So here for cancelling the terms, you have only considered two terms for fx. व्हाट हैपेंड? So here for fx, we have only considered the first two terms for like cancellation. फॉर कैंसिलेशन मतलब एक मिनट. Like here, so you've written that ax cube and then plus dot 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 in the blue marking. या वो x वाले टर्म में वो से बता रहा था, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं है यहाँ पर. इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर. Okay. आप खुद ही देख लो ना, अगर x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो मुझे, अगर मैं x रखूंगा तो वैल्यू मुझे 0 चाहिए ना एंड ऑफ द डे, Yes sir. है ना. तो इसके लिए मैंने ऐसे किया है. इज इट ओके? Yes sir. हाँ कौन क्या पूछ रहा था? वंश सर. हाँ वंश क्या पूछ रहा है तू? वंश एकदम ऐसा बॉटम लेफ्ट में है, यू हैव पुट e to the power limit x approaches 0 f of x की जगह पे we can put the options, we directly get answer. ओ मेरे भाई देखो यार वंश ठीक बोल रहा है तो, लेकिन वंश देख यार, ये अच्छा तरीका नहीं है रे ऑप्शन यूज करना. बच्चे ये जो तो हम लोग जो ऑप्शन यूज करने का जो करते हैं ना, वो एग्जाम में करना. मैं नहीं करने वाला ऐसा कभी भी. Yes, ओके, sir. Yes, sir. एग्जाम में जो करना है करो यार तुम लोग, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट. इज इट ओके? Yes sir. सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दैट. बट आपको समझा प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? इसको 0 बनाना था. आपका जो f of x है उसको x स्क्वायर को कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करेगा तो ये 0 नहीं होगा. डू यू एग्री? Yes sir. तो f of x को माइनस एक्स स्क्वायर होना पड़ेगा. उसके बाद ये x क्यूब का कहां से आया? इसको जब मैं रिजल्ट अप्लाई किया तो जब मैंने क्या देखा कि इसको फाइनाइट होने के लिए f of x को जो लीस्ट पावर जो मुझे लेना पड़ेगा वो x क्यूब वाला लेना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes sir. इसके लिए मैंने पर x क्यूब लिया. डू यू एग्री? Yes sir. पक्का ना? हाँ. ओके चलो अच्छी बात है. एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स वी डिड इट एंड वी वेंट अहेड. इज इट ओके? आर्यन शाह यस सर. आगे बढ़ते हैं. वीर मेहता है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये सारे प्रॉब्लम्स इजी चिंटू प्रॉब्लम्स है. ये तो शायद आपने कर किए भी होंगे काफी. चेक कर लो, इज इट ऑफ द फॉर्म 1 raised to infinity? चेक कर लो. अगर आप डिवाइड बाय x करोगे तो ये नीचे ये 1 हो जाएगा. डू यू एग्री?
If I divide the numerator and denominator by x, this will become what? 1 plus 0, 1 Yes, plus 0. sir. Do you agree? Yes, sir. Yes, 1 sir. raised to infinity form. Do you agree? So I'll add 1 so that I can subtract 1. Is it okay? Are, is it okay? Yes, Yeah, sir. sir. So I get here limit x approaching 0, 1 plus x cancel हो गया, तो क्या मिल रहा है मेरे को? x और x cancel हो गया. I get minus 2 plus 1 becomes minus 1 upon x plus 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, of course, can I use the direct result? E raised to limit x approaching infinity. यहाँ पर आएगा -1 upon x plus 2 into 2x plus 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And now, of course, I can simplify this value. So, यहाँ पर आएगा Divide by minus limit of x approaching infinity. I think अभी ये तो आपने बहुत ही किया होगा, तो आपको तो पता ही Divide होना by चाहिए. x, sir. So divide the numerator and denominator by x. So what I get here is infinity. I get 2 plus 1 by x. This is 1 plus 2 by x. Is it okay? Yes, sir. Now I can plug in infinity, so I get the answer e raised to minus 2, 0, 0. So this is the answer. Is it okay? Yes, sir. ठीक है ना? Yeah. चलो, good. So can't we do the next problem in a similar manner? Yes, sir, we can. Okay, तो मैं नहीं कर रहा हूँ. Is it okay? हाँ, sir. Okay, sir. ए वीर ठीक है ना? अरे वीर Yes, sir. चलेगा ना? हाँ. This is limit x approaching infinity. I can x plus 2 factorial as x plus 2 into x plus 1 factorial. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Now this is x plus 2 into x plus 1 factorial. Is it okay? Yes, sir. चलो पब्लिक बताओ मैं क्या करने वाला हूँ. Common लेके cancel. कॉमन लेके कैंसिल. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, तो आपको sir. मिलेगा x प्लस 2 प्लस 1. नीचे आएगा x प्लस 2 माइनस 1. इज इट ओके? Yes, sir. सो आई गेट लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ऊपर आ गया x प्लस 3. नीचे आएगा x प्लस 1. इज इट ओके? Yes, sir. तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. तो आई थिंक बहुत ही क्लियर है. दिस इज 3 बाय x 1 प्लस 1 बाय x. तो आपको आंसर मिलेगा यहां से 1. One. इज इट ओके? Yes, sir. Sir, one sec, can you come back? या ठीक है. Yes, sir, done. Cool. Okay, yeah, I think yeah, last समय. Okay. So this is a limit of n approaching infinity. The numerator can be written as 1 plus 8 plus dot 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 n cube upon 1 minus n raised to 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. और शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा. ऊपर वाला बंदा is 1 cube plus 2 cube plus 3 Three cube. cube. This goes on and on and on. N cube. In cube. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So of course ये क्या हो गया यार? Sorry, I think ये second last समय मुझे नहीं पता था यार. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे मिलेगा limit of n approaching infinity. ऊपर वाला will become n into n plus 1 by 2 the Square. whole square. Is it okay? Yes, sir. Cool. So I get limit of n approaching infinity. I'll open it. n square ये हो जाएगा n square plus 2n plus 1. नीचे आ गया upon 4 times. Is it okay? Yes, sir. Of course. तो ये जो ऊपर n raised to 4 बन जाएगा n raised to 4 plus 2n square नहीं n cube plus n square. नीचे होगा 4 times of 1 minus n raised to 4. Is it okay? Yes, sir.
I'll divide the numerator and denominator by what? n⁴. So I get 1 plus 2 by n plus 1 by n square. Do you agree? Yes, sir. This is 4 times of 1 by n minus 1. Do you agree? So when I put n as infinity, what do I get? 1 plus 0 upon 4 into 0 minus 1. So the answer becomes minus 1 by 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So cool, I have got this also as option D. ठीक है ना? Yes, sir. ओके तो ये लास्ट सम है. अब कि ये तो एकदम हलवा सम है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये वाला सम. We can also use expansion series out here. या ऑफ कोर्स सीरीज इज अ मेथड, पर हम उसको लॉपिटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. हाँ सर. sin x का डेरिवेटिव है cos x, आपके x का डेरिवेटिव है 1 एंड इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. सो ऑफ कोर्स यहां पर आएगा माइनस कॉमन 1 माइनस cos x अपॉन 3x स्क्वायर. चलेगा? Yes, sir. इसका आंसर क्या है? Half. हाफ. This is minus 1 by 3 into half. So your answer become negative 1 by 6. Is it okay? Yes, sir. बट Yes, हाँ sir. मैं चाहूंगा कि और एक चीज है, वो है आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू ऑल्सो नो द सीरीज मेथड कि कभी कभी सीरीज से ही करना पड़ता है. इज इट ओके? Yes, sir. सो सीरीज से चलो sin x का सीरीज बताओ. चलो X minus x square by x 3 minus factorial. x cube by 3. फैक्टोरियल प्लस x is to 5 by 5 फैक्टोरियल. ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता रहेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. माइनस x नीचे आ गया आपको x क्यूब. दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 0. आपका x कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x raised to 5 by 5 factorial. This goes on and on upon x cube. Now when I split that x cube, what happens? This will become minus 1 upon 3 factorial. Do you agree? Yes, sir. Plus terms of x. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा minus 1 upon 6 plus 0. So the answer is minus 1 by 6. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आई थिंक और तो कुछ नहीं है ना. क्या तेरा वीर, तेरा डाउट्स क्लियर हो गया क्या?